محمود غزنوی کی شہادت کے بعد غزنوی حکمران افغانستان کی حکومت اس طرح نہ چلا سکے جس طرح کی بنیاد سبکتگین اور محمود غزنوی نے رکھی تھی، لیکن اب وقت آ چکا تھا غوریوں کا۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن ٹائمز۔ غور افغانستان کا ایک شہر تھا اور ایک سنگلاخ علاقہ تھا اور بالکل ایک ویران قسم کا علاقہ تھا جو پہاڑیوں، کانٹا دار جھاڑیوں پر مشتمل تھا۔ جب غزنوی حکومت نے غور پر حملہ کر کے غور پر قبضہ جما لیا تو غور میں موجود ایک شخص عزاء الدین تھا اور اس کے والد نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ غزنوی حکمرانوں سے تنگ آ کر عزاء الدین کے والد نے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنے بیٹے عزاء الدین کو بھی ساتھ لے کر ہندوستان جا پہنچا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اسے وطن کی یاد ستائی اور اس نے دوبارہ واپس آنے کا فیصلہ کیا اور اس نے ہندوستان سے دوبارہ غور کے لیے رخت سفر باندھا۔ دریائی علاقہ تھا، جب وہ دریا میں پہنچا تو ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن قدرت کی طرف سے کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ رستے میں انہیں ایک شدید طوفان کا سامنا ہوا اور کشتی الٹ گئی اور عزاء الدین کا سارا خاندان ڈوب گیا اور قسمت کے ساتھ عزاء الدین اکیلا تھا جو اپنے خاندان میں اس حادثے میں جا بچا۔ عزاء الدین نے ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لیا اور تقریباً 1 مہینے تک وہ پانی میں تیرتا رہا اور کنارے تک جا پہنچا۔ جب وہ کنارے میں کسی جنگل میں جا پہنچا تو اس کی مصیبتیں تب بھی ختم نہ ہوئی۔ وہ جنگل سے گزرتا ہوا ایک بستی میں داخل ہوا اور بستی کے لوگوں نے اسے چور سمجھ کر قید کر لیا۔ تقریباً 7 سال کی قید عزاء الدین نے اس بستی میں کاٹی اور جب اس بستی کا حکمران مر گیا تو عزاء الدین کو آزاد کر دیا گیا، لیکن عزاء الدین کی مصیبتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ عزاء الدین وہاں سے آزاد ہوتے ہی کچھ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ ڈاکو غزنی کی سرحد پر موجود تھے، لیکن اللہ کی طرف سے عزاء الدین کو بچانا ممکن تھا تو اللہ نے غزنوی کے کچھ فوجیوں کو ان ڈاکوؤں کے پاس بھیجا اور ڈاکو وہاں سے پکڑے گئے۔ جب وہ پکڑے گئے تو ساتھ عزاء الدین بھی گرفتار ہو گیا اور وہاں کے موجودہ غزنوی حکمران سلطان ابراہیم نے ان ڈاکوؤں کے پکڑے جانے کی اطلاع جب اس کو ملی تو اس نے یہ کہا کہ ان سب کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب ڈاکوؤں کا سر قلم کیے جانے والا تھا اور عزاء الدین بہت ڈرا ہوا تھا۔ جب وہ وقت آیا اور ان کا سر قلم کیے جانے لگا تو عزاء الدین کا بھی سر قلم ہونا تھا، تو عزاء الدین وہاں پر چلانے لگ گیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گیا کہ یا اللہ میں تو بے گناہ ہوں، میں بے گناہ کیوں مارا جا رہا ہوں، میں بے گناہ کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ جب جلاد نے عزاء الدین کو یہ کہتے سنا تو اس نے غور کیا اور وہ عزاء الدین کو سلطان ابراہیم کے پاس لے گیا اور اس طرح سلطان ابراہیم نے اس سے ساری رودات سنی اور اس نے اپنی مصیبتوں بڑی ساری کہانی سنائی۔ اس طرح سلطان ابراہیم نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اپنی دربار میں اپنا ایک خاص سپہ سالار بنا کر رکھ لیا۔ اس طرح عزاء الدین کی مصیبتیں ختم کر کی۔ عزاء الدین نے اپنی مہارتوں کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، اس طرح اسے غور کا حکمران بنا دیا گیا۔ عزاء الدین کے 7 بیٹے تھے اور قدرت کی طرف سے 7 کے 7 بیٹے ہی صاحب شمشیر تھے۔ اس کے 7 بیٹے میں سے ایک بیٹا قطب الدین جسے بہرام شاہ جو کہ غزنی کا بادشاہ اور غزنی کا حکمران تھا، اس نے ایک بدگمانی کے الزام میں اس کو قتل کروا دیا۔ لیکن قطب الدین کی جب موت کا اس کے بھائی سیف الدین کو پتہ چلا تو سیف الدین نے بہرام شاہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس غوری سیف الدین نے بہرام شاہ پر حملہ کر دیا اور غزنی سے بہرام شاہ کو الگ کر دیا اور غزنی پر حکومت جما لی۔ لیکن یہ حکومت زیادہ دیر نہ رہی، بہرام شاہ دوبارہ طاقت کے ساتھ پلٹا۔ اس نے نہ صرف غزنی پر حکومت حاصل کی بلکہ سیف الدین کو ایک عبرتناک موت دی۔ سیف الدین کی موت کا جب اس کے بھائی علاء الدین کو پتہ چلا تو وہ سخت غصے میں آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ علاء الدین وہ بادشاہ تھا جس کی بربریت، جس کی بے رحمی کے قصے آج بھی لکھے جاتے ہیں اور آج بھی لوگ کانپ جاتے ہیں اس کے قصے پڑھ کر۔ علاء الدین وہ تباہ کن بادشاہ تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے بھائی سیف الدین کو عبرتناک موت سے مارا گیا ہے تو علاء الدین نے بہرام شاہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح اس نے بہرام شاہ پر حملہ کیا اور اس طرح زوردار حملہ کیا کہ پورے غزنی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس وجہ سے غزنی کا تب کا نام جہاں سوز کے نام سے پکارا جانے لگا غزنی کو۔ اس نے بہرام شاہ کو نہ صرف موت دی بلکہ تمام غزنی حکمرانوں کو موت سے ہمکنار کرتا گیا سوائے سلطان محمود غزنوی، سلطان ابراہیم اور سلطان مسعود کی قبروں کے علاوہ۔ اس نے پوری غزنی کو آگ لگا دی اور پورا غزنی ایک راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ جو موجودہ غزنی تھا یہ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس کی دوبارہ تعمیر نو کی اور اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ علاء الدین کے ظلم اور بربریت جاری تھی کہ
और गजनी और अफगानिस्तान अपनी तारीकियों में दोबारा डूब रहे थे और अलाउद्दीन अपने जुल्म करता जा रहा था। लेकिन गौरी खानदान की मकबूलियत की वजह अलाउद्दीन नहीं था, इज़ाउद्दीन नहीं थे, कुतुबुद्दीन नहीं था, बल्कि गौरी खानदान की एक नुमाया और गौरी खानदान की वजह गियासुद्दीन और शहाबुद्दीन गौरी थे। गियासुद्दीन और शहाबुद्दीन गौरी अज़ाउद्दीन के पोते थे और अलाउद्दीन के भतीजे थे। वो अपने चचा की जुल्म बर्बरियत से बहुत ज्यादा तंग थे और इसी वजह से अलाउद्दीन ने उन्हें कैदोबंद में रखा हुआ था। आखिरकार वो 7 साल की कैद के बाद बाहर निकले और उन्होंने अलाउद्दीन के जानशीन सैफुद्दीन को शिकस्त दी और खुद गौरी की सल्तनत को संभाल लिया। गौरी की सल्तनत संभालना ही था कि गौरी सल्तनत का दोबारा सुनहरा दौर शुरू होने लगा। इस तरह शहाबुद्दीन ने खुद सदारत संभाल ली और उसने अपने भाई को सिपा सलार मुकर्रर कर दिया और इस तरह गौरी सल्तनत दोबारा तारीकियों से, जुल्म से, बर्बरियत से निकलना शुरू हो गई और उसकी तरक्की और नशोनुमा शुरू हो गई। इन दोनों भाइयों का यह सुनहरा दौर शुरू होना ही था कि अफगानिस्तान में दोबारा सनत, ज़राअत और हर शोबे में तरक्की होना शुरू हो गई। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी को पता चला कि महमूद गजनवी और गजनवी खानदान का आखिरी हुक्मरान अमीर खुसरो लाहौर में तैनात है, तो क्यों ना उससे भी निपटा जाए। इस तरह शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी फौज के साथ लाहौर पर चढ़ाई कर दी और अमीर खुसरो को शिकस्त देकर उस पर भी कब्जा जमा लिया। अब तकरीबन तमाम हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में गौरियों की हुकूमत छा चुकी थी। लेकिन गौरियों की हुकूमत एक इंसाफ पसंद हुकूमत थी, एक ऐसी हुकूमत थी जिसमें अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बल्कि उनके नीचे आने वाला हर इलाका तरक्की कर रहा था। शहाबुद्दीन गौरी ने फौज की कमान संभाली हुई थी और गियासुद्दीन गौरी ने बाकी तमाम अमूर संभाले हुए थे। इस तरह ये दोनों मिसाली भाई आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन इनको मालूम हुआ कि जिस तरह महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़कर हिंदुओं की शर, हिंदुओं के कुफर और हिंदुओं की साजिशें और उस बिद्दत और उस शिर्क को खत्म किया था और उस मरकज को खत्म किया था, इसी तरह का एक मरकज भटिंडा के मकाम पर एक मंदिर की शक्ल में, जब इस हिंदुओं के इस मरकज, शर के इस मरकज, कुफर के इस मरकज का शहाबुद्दीन को पता चला, तो शहाबुद्दीन ने अपने फौजियों के साथ भटिंडा का रखते सफर बांधा और उसे फतह करने का इरादा किया और उसे दोबारा मस्जिद में और वहां पर इस्लाम को लाने का फैसला किया, क्योंकि वो भी महमूद गजनवी के राह पर गामजन था, वो भी हिंदुओं के मरकज को तोड़ना चाहता था। इस तरह शहाबुद्दीन अपने फौजियों के साथ आखिरकार भटिंडा पर हमला आवर हुआ और उसने भटिंडा के किले को फतह कर लिया और उस मंदिर को गिरा दिया। जब इसकी खबर तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े सूरमाओं और राजाओं तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शहाबुद्दीन का वापस गौरी आना भी बहुत जरूरी था। इस वजह से शहाबुद्दीन ने अपना एक गवर्नर वहां पर तैनात किया और भटिंडा से गौरी आने का फैसला किया कि उसे रास्ते में खबर मिली कि पृथ्वीराज और खंडे राय जैसे बहुत बड़े हिंदू सूरमा वो रास्ते में हमला करने का इरादा रखते हैं। न सिर्फ वो रास्ते पर हमला करके बल्कि वो भटिंडा का किला फतह करने का भी इरादा रखते हैं। पृथ्वीराज एक ऐसा बादशाह था जिसके पास लाखों की तादाद में घुड़सवार, हाथी और प्यादे मौजूद थे। लेकिन मुसीबत की बात यह थी कि इस ताकतवर बादशाह के साथ खंडे राय भी मिल चुका था, जो कि खुद अपनी सल्तनत का बहुत बड़ा बादशाह था। इन दोनों ने शहाबुद्दीन गौरी को एक सख्त मुकाबले की दावत दी थी। इस तरह शहाबुद्दीन गौरी भी ना उनसे घबराया ना डरा, बल्कि उसने अपने कुछ ही सिपाहियों जो हजारों में मौजूद थे, पृथ्वीराज और खंडे राय का मुकाबला करने का फैसला किया। उसने अपने सारे फौजियों को तैयार किया, वो किले से निकला। उसने ये फैसला किया कि इनका मुकाबला किले में ना किया जाए, बल्कि आगे जाकर उनका रास्ते में ही हम उन पर चढ़ाई कर देंगे, ना कि हम उनका दिफा करेंगे उसका आगे, बल्कि हम खुद उन पर चढ़ाई करते हैं। इस हिकमत अमली के तहत शहाबुद्दीन अपने फौजियों के साथ चल पड़ा और दिल्ली से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर तरावड़ी के मकान पर ये तीनों बादशाह आपस में मध्य मुकाबले हुए। एक तरफ मुसलमान बादशाह शहाबुद्दीन गौरी था और दूसरी तरफ हिंदू राजा पृथ्वीराज और खंडे राय की फौज थी। तीनों बादशाहों के दरमियान एक खूनरेजी जंग शुरू हो गई और इस जंग के दौरान बदकिस्मती से शहाबुद्दीन गौरी का दायां बाजू और बायां बाजू जहां पर उसके बादशाह तैनात थे, उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो भागने लगे। मुसलमान बादशाहों का भागना ही था कि खंडे राय की फौज और पृथ्वीराज की फौज भारी पड़ गई और उसने यहां तक के मुसलमानों
की फौज को तहस नहस कर दिया और इस दौरान शहाबुद्दीन गौरी भी गायब हो गया। हिंदू की फौज ढूंढने लगी शहाबुद्दीन गौरी को, पृथ्वीराज और खंडे राय आखिरी दम तक ढूंढते रहे और इस तरह शहाबुद्दीन गौरी का कुछ पता न चल सका। यहां मुसलमान फौज बिल्कुल बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी। एक वो हार चुके थे, दूसरा सबसे बड़ी बात उनको उनका सरदार भी नहीं मिल रहा था। पृथ्वीराज और खंडे राय ने इसके बाद भटिंडा का किला भी फतह कर लिया और उसमें रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शहाबुद्दीन गौरी को दोबारा नमूदार हुआ और वो दोबारा अपनी फौज से जाकर मिला। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी सख्त गमगीन था, सख्त गुस्से में था और बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था। उसे दोबारा गौरी लाया गया, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी का रहन सहन इस शिकस्त के बाद वो ना था जो पहले था। उसने अपनी बीवी के पास जाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया और यहां तक के नया लिबास भी पहनना छोड़ दिया। ठीक 1 साल के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने दोबारा अपनी फौजों को रखते सफर बांधा और तैयार किया और उसने कहा कि मैं पृथ्वीराज और खंडे राय को उनके ही इलाके में दोबारा उसी मकाम पर शिकस्त दूंगा, नहीं तो मैं शहीद होकर वापस आऊंगा। लेकिन वो जो कमांडर उसका साथ छोड़कर भाग चुके थे, शहाबुद्दीन गौरी ने दोबारा उनको अपनी फौज में शामिल किया और इस बात पर शामिल किया कि वो इस बार अगर भागे तो शहाबुद्दीन की तलवार का वो सामना खुद करेंगे। इस तरह शहाबुद्दीन गौरी दोबारा अपनी फौज को लेकर तरावड़ी ही के मकाम पर पहुंचा जहां पर शहाबुद्दीन को शिकस्त हुई थी और उसने खंडे राय और पृथ्वीराज को सुन्नत के मुताबिक इस्लाम की तबलीग के लिए खत लिखा और कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो दोबारा तरावड़ी के मकाम पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। पृथ्वीराज और खंडे राय इक्तदार के नशे में धुत थे, वो जीत के नशे में धुत थे। उन्होंने उस खत को ज्यादा अहमियत ना दी और वो अपनी पुरानी जीत की खुशी में उन्होंने समझा कि हम शहाबुद्दीन को उसी तरह दोबारा शिकस्त देंगे जिस तरह हमने पहले दी थी। वो दोबारा अपनी फौजें, इस बार पृथ्वीराज अपनी फौज को 3 लाख गुना बढ़ा कर ले आया था। उसकी फौज पहले 1 लाख थी, अब उसकी फौज तकरीबन 4 से 5 लाख फौजियों पर मुश्तमिल थी। खंडे राय की फौज भी लाखों पर मुश्तमिल थी। यहां शहाबुद्दीन सिर्फ 15,000 फौजियों के साथ दोबारा लड़ने गया हुआ था। जब शहाबुद्दीन 15,000 फौजियों के साथ उनके सामने आया और वो लाखों में थे, वो नशे में, अपनी ताकत में और बहुत ज्यादा ताकत होने की वजह से पागल हुए थे। लेकिन शहाबुद्दीन ने हिकमत अपनाई और एक दोबारा प्लान और एक पॉलिसी इख्तियार की कि छोटी छोटी टुकड़ियों में फौज को अलग किया और छोटी छोटी टुकड़ियां ताजा दम होकर पृथ्वीराज और खंडे राय की फौज पर टूटने लगी। लेकिन शाम तक फौज लड़ती रही, खातिर खा मुसलमानों को जीत ना हुई। लेकिन हिंदू बहुत ज्यादा मारे गए, लेकिन इतने ज्यादा हिंदू भी नहीं मरे थे कि पृथ्वीराज और खंडे राय को कोई परेशानी दरपेश आती। जब यह सूरत हाल शाम के बाद शहाबुद्दीन ने देखी तो शहाबुद्दीन सारी फौज के साथ अल्लाह का नाम लेकर जलाल में आकर खुद उन पर टूट पड़ा। वो वार इतना ज्यादा था, शायद यूं लग रहा था कि बदर की जंग की तरह शहाबुद्दीन की तरफ अल्लाह ने फरिश्तों की मदद भेज दी है। वो इस तरह का सख्त वार था कि 15,000 फौजियों पर मुश्तमिल शहाबुद्दीन की फौज पृथ्वीराज और खंडे राय पर तबाहकुन हमले कर रही थी और इस हमले में पृथ्वीराज और खंडे राव को बेहद नुकसान हुआ और इतना नुकसान हुआ कि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्होंने भाग भाग कर अपनी जानें बचाई। और इस तरह वो जंग शहाबुद्दीन गौरी ने खंडे राय और पृथ्वीराज को उनके इबरतनाक आखिरी हद तक और इबरतनाक मंजिल तक उन्हें पहुंचा दिया। और इस तरह शहाबुद्दीन गौरी ने वहां पर इस्लाम का परचम लहराया और अपनी 1 साल पुरानी शिकस्त को जीत में बदला। शहाबुद्दीन गौरी ने जब ये जंग खत्म की तो शहाबुद्दीन गौरी वहां पर ना रुका। कुछ अरसा भटिंडे के किले में रहने के बाद उसे पता चला कि तुर्किस्तान में मौजूद 2 कौमें जो खोखर और घक्खड़ थे, ये गैर मुस्लिम कौमें थीं। इनमें से कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे, लेकिन बहुत ज्यादा मौजूद तादाद में खोखर और घक्खड़ कौमें ऐसे थीं जो कि मुसलमान नहीं हुए थे और उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ था। तो इस तरह तुर्किस्तान का रखते सफर बांधा। शहाबुद्दीन अपनी इस फौज के साथ जो अभी अभी जंग से फारिग हुई थी, दोबारा तुर्किस्तान के लिए चल पड़ा। लेकिन जब वो रस्ते में था तो मंदरा के इलाके में शहाबुद्दीन ने पड़ाव किया रात को और वहीं पर उसकी कत्ल की साजिश की गई। यह वक्त था तकरीबन
रात का जब शहाबुद्दीन गौरी को तकरीब 20 से 22 अफराद जो ऐसे जंगजू थे उनको शहाबुद्दीन गौरी के मरकजी खेमे के पास भेजा गया और एक शख्स मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हुआ, उसने शहाबुद्दीन गौरी पर वार किया और वो वार कर कर भाग गया। उसकी जितने भी मरकजी खेमे पर मौजूद तैनात अफवाज थी या उसके पहरेदार थे वो उसके पीछे भागे और इस तरह जो बाकी मादा लोग उसकी ताकों में खड़े थे वो शहाबुद्दीन गौरी के खेमे में दाखिल हुए और वो बहुत तादाद में 20 से 25 लोग थे जिन्होंने शहाबुद्दीन गौरी पर कातलाना हमला किया और इस हमले में शहाबुद्दीन गौरी ने शहादत नोश फरमाई। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी का वो दौर था जिसने हिंदुस्तान के हिंदू राजाओं और वो राजे जो इंसाफ पसंद नहीं थे, जो मुसलमानों पर हावी थे, जो मंदिर तो ज्यादा बना रहे थे और मस्जिदें तबाह कर रहे थे, जिन्होंने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ था, उनका महमूद गजनवी की तरह डटकर ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उनको तहस नहस किया, जिसमें पृथ्वीराज और खंडे राय जैसे बड़े हुक्मरान भी शामिल थे जिनको तबाह कर डाला। और इस तरह शहाबुद्दीन का वो सुनहरा दौर खत्म हुआ जिसमें अफगानिस्तान फूल बढ़कर दोबारा जमीन से आसमान की तरफ बढ़ रहा था। ये थी आज की वीडियो जो शहाबुद्दीन गौरी की जिंदगी पर और उसकी शहादत पर मुश्तमिल थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।